Hello Sheetal. Hi Lina. Hi Manpreet, how are you? Another Manpreet in the audience. Hello Sheena. We'll wait another 2 minutes and then we'll start. Hello Sunita ji. You know, it's really lovely कि इतनी सारी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ती जा रही है बिकॉज आई फील लेडीज़ को बहुत काम रहता है घर में एंड स्पेशली लॉकडाउन में इट्स रियली हार्ड कि इतना टाइम निकाल पाना अपने लिए बट इट्स वेरी नाइस कि यहाँ पे लेडीज़ इतनी इंटरेस्टेड हैं टू लर्न समथिंग न्यू so my gratitude to all of you for joining in and taking out time for yourself for learning something new and I hope आज मुझसे आप कुछ नया सीख के ही जाएं and I'll be really happy to share my views with you. So I feel the energy of the audience, it comes up on the speaker. So if you all are energetic, if you want to learn something new, so type BIO, bring it on. I want to see your reactions to what I tell you all. So BIO, bring it on. Nobody wants to bring it on. Let's bring it on, and so that we can at least have that energy of enlightened people who want to do something and learn something new today. And आज का topic है भी बहुत interesting. So the topic of today's session is how to become a money magnet, right? And इस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, बट ये जानकारी आप मुझसे क्यों लेना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगी, बट उससे पहले ग्रेट मानसी प्रवीण, ग्रेट BIO. सो मैं उससे पहले आपको कुछ 2-3 बातें बताना चाहूँगी कि नंबर 1, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी मन में अराइज होंगे क्वेश्चंस, तो आप सिर्फ कमेंट्स में छोड़ते जाइए, क्योंकि अब मैं इसके बाद सेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ जिसमें कि हम सब आराम से एक फ्लो में कंटिन्यूटी में बात कर सकें, ताकि कोई भी आप सबके क्वेरीज मैं एक एक करके सॉल्व करूँगी एंड ऑफ द सेशन में, ठीक है? एंड इन एनी केस टाइम नहीं भी बचता सेशन के बाद, तो हम एक काम करेंगे कि आई विल पर्सनली सॉल्व ऑल योर क्वेरीज लेटर इन द कमेंट बॉक्स, right? So BIO from everyone. I'm really excited with such a great audience. Thank you so much. And secondly मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पोस्ट के अंदर जो लिंक है आएगा मेरे FB पेज का, तो अगर आपको कुछ भी इस सेशन में अच्छा लगता है एंड आप मेरे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, आप मेरी टीचिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर आप उस पेज को लाइक करिएगा. इट इज़ मनप्रीत कौर, माइंड एनर्जाइजर एंड NLP कोच, right? And along with that there's a WhatsApp link also for a more personal touch, one-on-one basis, and you will get the link to that also. So let us start. First of all, an introduction about me. I'm Manpreet Kaur. I'm a mind energizer and I'm the founder of the International Mind Energizer Academy. I am basically a certified spiritual healer as well as a neuro-linguistic programming coach, which is a thing which very less people have heard about, but you will find out more about it in today's session. What exactly is it about? And along with that, I am a motivational speaker and I am a budding author too. So soon you'll be seeing my books in the market as well. तो आज हम शुरू करते हैं how to become a money magnet, right? पहली बात तो there are internal and there are external laws to money, right? एक होता है इंटरनल इनसाइड ऑफ अस एंड एक्सटर्नल इन द कंडीशंस वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड. तो हम आज के सेशन में सिर्फ इंटरनल लॉज के बारे में बात करेंगे. और वो क्यों करेंगे? क्योंकि जो इंटरनल वर्ल्ड है वो ही डिसाइड करता है हमारी लाइफ में. जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है हमारी लाइफ का, वो सिर्फ अंदर से आता है. अगर आप एक्साइटेड हैं टू नो अबाउट दैट, देन टाइप इन द कमेंट बॉक्स एक्साइटेड.
so that I can tell you more in detail, right? Why is money necessary? Do you think money is necessary in life? Of course it is. जो ये कहते हैं कि money is not everything, true, it is not everything, but it is a lot. अगर हम अपनी लाइफ में मनी की कोई भी स्कैर्सिटी, we are not able to pay the bills, or we are not able to pay our rent, or maybe pay the fees of the school, any sort of thing, अगर हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं हम वो नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी, वो हमें स्ट्रेस देता है कहीं ना कहीं. हमारी लाइफ में एक एंग्जाइटी ऐड हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी. एंड इसी वजह से ही जो लैक ऑफ मनी है, कई बार आप देखेंगे, कई बार क्या मैक्सिमम जो है जो मैरिजेस होती हैं उसके अंदर रिलेशनशिप इश्यूज स्टेम ही मनी की वजह से होती है. डू यू एग्री विद दैट? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग? इफ़ यू से देन राइट एग्री इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं पर्सनली सबके कमेंट्स बाद में ज़रूर पढ़ूंगी. सो मैरिजेस में तो प्रॉब्लम आ जाती है. सेकेंडली आप अगर देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा मनी की स्कैर्सिटी है, देयर इज़ अ लैक ऑफ मनी, आप देखेंगे वहाँ पे लोगों को एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिजीज़ेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. एंड थर्डली जहाँ पे आप देखते हैं कि जिन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है वहाँ पे क्राइम ज़्यादा बढ़ जाता है. ये बात आप एग्री करते होंगे. सो कहीं ना कहीं एक ऐसा को रिलेशन है मनी का और हमारे स्ट्रेस लेवल्स का और हमारी वेलबींग का लाइफ में. अगर हम इस दुनिया में आए हैं, एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, we are not human beings having a spiritual experience, right? We are actually living through this body and having experiences for our spirit. हमारा स्पिरिट क्या जानता है? अबंडेंस. हमारा स्पिरिट जानता है कि हम कैसे एक्सपैंड करें, हम न्यू स्किल्स लें लाइफ में, हम न्यू एक्सपीरियंसेस लें लाइक ट्रैवलिंग और मे बी आवर हॉबीज़ एंड ऑल. बट वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं अगर हमारे जो पॉकेट है उसमें पैसा नहीं होगा? तो इज़ इट पॉसिबल? एंड आई थिंक मैनी ऑफ यू विल एग्री कि ये एक ही ज़िंदगी है और सब इसको अच्छे से जीना चाहते हैं. डू यू वॉन्ट टू लीड अ फुल लाइफ? देन राइट, I want to lead a full life in the comments below, because everybody is entitled. ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर हैं या आप एक जॉब में हैं या आप अगर कुछ भी तरीके से कमा रहे हैं तो ही आपको राइट है कि आप एक अच्छा कुछ लाइफ जी सकें. इवन एक अगर घर पे बैठी हाउसवाइफ है तो भी वो अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर सकती है जिससे कि वो सब कुछ उसे मिले बिना पैसा कमाए. और ये चीज़ें मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही हूँ, दीज आर प्रूवन एंड आई विल टेल यू फॉर श्योर. आई हैव यूज देम इन माई लाइफ एंड तभी मेरी जो रॉक बॉटम आई वॉज एंड आज मैं जहाँ पे हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड द माइंड विच आई एम यूजिंग. दीज आर द लॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी. अब ये चीज़ें जो हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती हैं एंड दैट इज़ रियली सैड, बिकॉज़ कहीं ना कहीं अगर यही चीज़ें पहले सिखाई जाएं बच्चों को ही शुरुआत से ही, तो उनकी लाइफ बहुत इजी हो सकती है आगे, एंड अडल्ट लाइफ विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर देम. बट वी कैन स्टिल डू आवर पार्ट, वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा. सो आज कहीं ना कहीं जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अगर आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं तो इट इज़ अ कॉलिंग फ्रॉम योर सोल दैट आज हम एक जगह पे मिल पाएँ और आज आप एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे जिससे कि आपकी लाइफ प्रैक्टिकली चेंज हो सकती है, राइट? सो हमारा जो माइंड है, अगर हम इसके अंदर और गहराई में जाएं, एक मैग्नेट की तरह काम करता है. या तो वो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आता है या वो उसे दूर करता है, राइट? इट कैन आइदर अट्रैक्ट मनी और इट कैन रिपेल मनी. अब आप अगर देखें, इवन जो लोग जॉब्स में भी हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे चाहे वो पैसे कमा रहे हैं बट उनकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है. उन्हें ऐसे लगता है हम उस चूहे की तरह हैं जो एक केज में बंद है. They are not able to lead a happy or fulfilled life, as we can say, even though they are earning money. कई बार आपने सुना होगा वो इंसान इतना गरीब है किसकी लाइफ में सिर्फ पैसा है,
Do you agree with me or not? We definitely want money in our life, but along with that we want a lot of experiences and happiness. फुल लाइफ का मतलब ही ये होता है कि आपकी लाइफ में हार्मनी है, आपकी लाइफ में पीस है। कई लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतना कुछ अपना टाइम, अपनी हेल्थ, सिर्फ सही मायने में पैसा ही रह जाता है, एंड दे आर नॉट एबल टू एंजॉय लाइफ, राइट? सो टुडे एड्रेसिंग दिस पार्ट कि एक प्रॉस्परस, सही मायने में हार्मोनियस, रिच लाइफ कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द पावर्स ऑफ आवर माइंड। सो अगेन टेल मी, आर यू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट? आई विल स्टार्ट विद अ thumbs up. I would love to see your enthusiasm if you want to see the next part, which is a beautiful story from Lord Buddha's life and his teachings. So इस स्टोरी में एक बार बुद्धा जी बैठे होते हैं और उनके एक डिसाइपल आते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि आप कहते हो कि जो हम सोचते हैं वही होता है लाइफ में, पर ये कैसे होता है? आप इसका एक उदाहरण दीजिए। तब उन्होंने एक कहानी बताई, बहुत ही मैं मानती हूँ कि बहुत सच और बहुत अच्छी कहानी है ये, जो हर इंसान अगर इसको समझ जाए तो उनकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। तो उन्होंने बताया, एक बार एक गांव में एक सेठ रहता था और वो दिन रात सिर्फ पैसे के बारे में सोचता था। उसकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी एंड वहाँ पे उसके माइंड में हमेशा रहता था मैं अपना काम कैसे बढ़ाऊँ, वो उस पर फोकस करता था। और इसी की वजह से क्या होता था कि उसकी वेल्थ दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी, वो और सक्सेसफुल होता जा रहा था एंड ही वॉज रियली हैप्पी। बट एक दिन दूसरे गांव से एक इंसान आया और उसने बताया कि उस फला गांव में एक और सेठ थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सेठ बहुत उसमें आ गए, असमंजस में, कि क्या हुआ आखिर में। तो उसके पास तो बहुत पैसा है, वो अपना इलाज करा सकता था। तो उसने कहा उसे ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं। फिर उसने कहा कोई ना कोई ऐब ज़रूर रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कोई ऐब नहीं था उन्हें, पर मौत आ गई। तो ये बात सुनते ही उस सेठ के मन में एक डर सा, समझ लीजिए, बैठ गया कि अगर उसके साथ ये हो सकता है तो मेरे साथ भी तो हो सकता है। तो वो दिन रात ना यही अब माला जपने लग गया कि मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा किसी दिन, मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा किसी दिन। तो जब ये बोलने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी लाइफ में उसकी वेल्थ तो कम होने लग गई, साथ ही उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई। यहाँ तक कि एक ऐसा टाइम आया कर दिया, ये देखकर घर वाले बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे एंड उन्हें लगता था कि अब बस इनके दिन करीब आ गए हैं और इनकी मृत्यु हो जाएगी। इतने में ही क्या हुआ, एक बार एक ज्ञानी आए उस गांव में। तो उनके घर वालों ने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे हुआ है इनके साथ, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो उन्होंने जब ये सारी बात सुन ली तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली उस सेठ को कि दिन रात तुम अपने मुंह से और अपने माइंड में, जिसे हम कहते हैं, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलना, और वो सेंटेंस है मैं तब तक पूरी तरह जीऊँगा जब तक मैं मरता नहीं। ठीक है? सो व्हाट डिड ही डू, उन्होंने उनको एक न्यू होप दे दी और एक आइडेंटिटी दे दी कि आप एक फुल लाइफ जिएंगे जब तक आपका एंड डे नहीं आता। तो कहीं ना कहीं फिर सेठ ने सोचा मैं भी करके देख लेता हूँ। तो उन्होंने करना शुरू किया और एक आध महीने बाद वापस आए फिर से वो ज्ञानी। और जब वो ज्ञानी वापस आए तो वो भी हैरान रह गए कि वो जो सेठ मंजी पे थे, मृत्यु की ओर जा रहे थे, आज वो बिल्कुल उठ के एनर्जेटिक एंड हेल्दी हो गए। और हेल्दी तो हुए, साथ ही उनके कारोबार में फिर से प्रगति होनी शुरू हो गई। तो ये कहानी एक्चुअल में सच जो है हमारी लाइफ का और हमारे माइंड का और हमारे यूनिवर्स के लॉज का है, और जिसे हम कहीं ना कहीं, आई डोंट नो आप लोग कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वी बिकम एंड वी अट्रैक्ट व्हाट वी थिंक अबाउट ऑल द टाइम। कितने लोगों ने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? रेज योर हैंड या राइट LOA।
जितने लोगों ने यहाँ पे LOA के बारे में सुना हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा लॉ है यूनिवर्स का जिससे कि जो कुछ आप सोचते रहते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं, राइट। अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद आप ये देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमने बहुत कोशिश की लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने की, पर हमसे हुआ नहीं, जो हम रिजल्ट्स चाहते थे वो हमें मिले नहीं। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह। आप चाहे उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, एंड वो सबको अप्लाई होता है। बट क्यों होता है, कई लोग उसमें सफल हो जाते हैं और कई लोग ना सफल रहते हैं। तो उसके पीछे की वजह है वर्किंग ऑफ द माइंड। इसीलिए मैं जिन जिन को अपनी टीचिंग देती हूँ सिर्फ ये बताती हूँ, आपको किसी और चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें पजल की तरह पूरी फिट हो जाएंगी आपकी लाइफ में अगर आपको वर्किंग ऑफ द माइंड के बारे में समझ है। तो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, उसी से बहुत दुनिया ने अपनी लाइफ चेंज की है। बट अगेन आप ये भी जानते होंगे कि बहुत लोग डिसवेट भी हुए हैं क्योंकि उनसे अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं सबको कहती हूँ, डोंट अप्लाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। आर यू गाइज रेडी? आर यू एंजॉइंग द सेशन? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एंजॉइंग द सेशन। मुझे भी पता चले कि कहाँ तक हैं हम लोग, एक ही लेवल पे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो अ लिटिल बिट। सो वर्किंग ऑफ द माइंड। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है? कई लोग कहेंगे हम तो दिन रात यही चाहते हैं, हम अमीर हो जाएं, हम यही, तो फिर क्यों नहीं हो रहे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें अमीर क्यों नहीं करता? इज़न्ट दैट अ क्वेश्चन? क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जितने लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, दिस इज़ व्हाट दे आस्क कि इफ़ दिस इज़ व्हाट वी वांट देन व्हाई इज़ इट नॉट हैपनिंग इन आवर लाइफ। तो हम थोड़ा सा यहाँ डीप में जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें और इस चीज़ को जानने की आज कोशिश करें। ये क्यों नहीं अप्लाई होता? बिकॉज हमारा माइंड जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड है हमारा लॉजिकल माइंड, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम फैसले लेते हैं, जिससे हम कोई नई चीज़ें जो हैं हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमने कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, उसकी बातें पसंद आई, उसको हम सुनते रहते हैं, राइट। एंड या हमें कोई नई बुक मिली, हमने उसको पढ़ लिया, या इवन अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करना, अपनी स्कूल या यूनिवर्सिटी को चूज़ करना, ये सब कुछ हम करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना बहुत ईजी होता है। जो आपने चीज़ सोची वो हो गई, फाइन। अब आता है सबकॉन्शियस माइंड। वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा इमोशनल माइंड, जहाँ पे हमारे सारे इमोशनल कनेक्ट की बातें छुपी होती हैं। समझ लो एक बहुत बड़ी कबर्ड है, उसके अंदर हमारी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, इमोशंस, यहाँ तक कि बचपन से लेकर आज तक की सब उसके अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। जिन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं सही मानते हैं, हमारे बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज अगर आप सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं कल से मैं सुबह उठ के वॉक का रूटीन बनाऊंगी, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं ना, कल सुबह से मैं वॉक पे जाऊंगी, सुबह 5 बजे उठ के जॉगिंग करने, वॉक करने जाऊंगी। कितने लोग सफल हो पाते हैं, राइट? कितने लोग हैं जो पहले दिन ही नहीं जा पाते सोचने के बावजूद भी? बहुत, आई थिंक 99.9% लोग वो कर ही नहीं पाते जो वो करना चाहते हैं, राइट। एंड ऐसे ही अगर आप देखें वो लोग जो कहते हैं मैं सिगरेट या शराब पीना छोड़ दूंगा, वो उनके कॉन्शियस माइंड ने ये डिसीजन लिया, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए, कॉन्शियस माइंड ने डिसीजन लिया, लॉजिकल माइंड ने ये मेरे लिए चीज़ अच्छी नहीं है मैं छोड़ दूंगा, या ये मेरे लिए चीज़ अच्छी है मैं इसको शुरू कर दूंगी। बट कहीं ना कहीं क्या होता है, हम वो नहीं कर पाते। तो हम वो क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड।
हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारी लाइफ को 95% पावर से कंट्रोल करता है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसकी तो वीक 5% की सिर्फ पावर होती है हमारी लाइफ में। दैट इज़ वाई जो हम करना चाहते हैं हम सोच तो लेते हैं पर वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि जो हमारा हैबिचुअल माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड, वो उस पर हावी हो जाता है। आप जो भी फैसले लेना चाहते हैं लाइफ में, वो आपके फैसले सब कॉन्शियस माइंड ले रहा है। हम तो बहुत खुश होकर सोचते हैं, हम अपने माइंड को ऑर्डर दे रहे हैं कि माइंड तुमने मुझे कल उठा देना, सुबह मैं इतने बजे उठ के वॉक पे जाऊंगी, या कल से मैंने ये सिगरेट हाथ भी नहीं लगानी, मैंने इसको टच नहीं करना। बट एग्जैक्ट ट्रूथ ये है कि हम अपने माइंड को रन नहीं कर रहे, हमारा माइंड हमें रन कर रहा है और हमारी लाइफ को रन कर रहा है। अब यहाँ पे पैसा कैसे इंक्लूड होता है ये आप समझिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अमीर हों, राइट? दुनिया में तो अमीरी की कमी नहीं है। अगर आप नेचर को ही सिर्फ देखें, इट इज़ सो अबंडेंट। नेचर नो पॉवर्टी या लैक तो नेचर जानती ही नहीं। अगर आप जाके किसी भी गार्डन में जाएंगे ना, इतनी ग्रास आप गिन नहीं सकते। आप ऊपर तारे देखेंगे तो तारे इतने हैं आसमान में, आप उनको गिन नहीं सकते। आप अगर वो देखेंगे ना सैंड के पार्टिकल्स, वो इतने सारे हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस वर्ल्ड में करेंसी इतनी है, इतना पैसा है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो फिर वो हमारे तक क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रोक रहा है। यहाँ तक सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो गिव मी अ ब्यूटीफुल हार्ट इन द कमेंट्स बॉक्स प्लीज़, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा और डीप में जाऊंगी, क्योंकि मैं समझ रही हूँ एक यहाँ पे एक मेरे साथ बहुत अच्छी एजुकेटेड ऑडियंस बैठी है जो अपनी लाइफ को किसी और ही लेवल पे देखना चाहती है। सो गिव मी अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड दिस इज़ फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू। एंड इसका थोड़ा सा और डीप जाते हैं हम। अब क्या होता है, हम में जो बिलीव्स हैं, राइट, ध्यान से सुनिएगा, वो हमारी जो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 7 साल की उम्र तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने बिलीव्स बना चुका होता है। लेट मी रिपीट दैट। लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जबकि बच्चा अंदर होता है, से लेकर 7 साल की उम्र तक हमारे माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। जबकि हम समझते हैं ये तो बच्चा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं। और ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों के अंदर 7 साल की उम्र तक कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है। दे कैन नॉट कॉन्शियसली डिसाइड ये चीज़ सही है कि गलत है। जो उनके सामने इंफॉर्मेशन आती है वो सीधा डाउनलोड हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव, आई लव यू ऑल। सो उनके अंदर क्या होता है, ये प्रोग्राम सेट हो चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये सच है कि झूठ है। चाहे वो एक मूवी क्यों ना देख रहे हों, उसको उन्होंने देखा, फील किया, इमोशंस बने और वो स्टोर हो गया सबकॉन्शियस में। अब इससे उसकी लाइफ, उसकी डेस्टिनी जो है पूरी फॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमारी लाइफ में बार बार वो लेके आता है इंसिडेंट्स जिसमें वो बिलीव करता है वो ट्रू है। अब मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाऊंगी ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए जो मैं बात कहना चाह रही हूँ। कहीं ना कहीं सपोज़ किसी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही हो पैसे की, जब कोई बच्चा छोटा रहा हो अपने घर में, तो उसने सिर्फ यही देखा कि फैमिली में प्रॉब्लम है पैसे की, तो उसके माँ बाप बोलते हैं तुम ये खर्चे मत करो, पैसे कोई पेड़ पे उगते हैं, जब कमाने पड़ेंगे पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो उसके माइंड में क्या अंदर चलेगी, प्रोग्रामिंग क्या होगी? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पहली बात, पैसे कोई पेड़ पे उगते हैं? नहीं उगते। तो उस बच्चे के मन में ये चीज़ परमानेंटली फिट हो गई कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब फास्ट फॉरवर्ड कर दो, जब तक वो अडल्ट बना, बाहर की ज़िंदगी में आया, उसने बिजनेस या जॉब शुरू की। अब उसका 95% जो सबकॉन्शियस माइंड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सारा कुछ उसी लाइफ में लेके आता जा रहा है। और वो क्या लेके आ रहे हैं? ऐसी ही सिचुएशंस
ऐसे ही इवेंट्स, ऐसे ही लोग बार बार उसकी लाइफ में आ रहे हैं जो उसकी बिलीफ को ट्रू फील करवा रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इज़न्ट इट अमेजिंग? जब मुझे ये बात पता चली थी, आई वॉज टेकन अबैक। जिस चीज़ पे हम समझते हैं हमारा हक है, हम माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, बट हमारा माइंड ही जाने अनजाने में हमें कंट्रोल कर, लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहा है। नाउ द गुड पार्ट इज, द बेस्ट पार्ट आई वुड से इज कि हम इन बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। स्टे ट्यून टिल द एंड एंड आपको मैं थ्री वेज आई टेल यू कैसे आप इन बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। बट बिलीव्स को चेंज करने के लिए हमें पहले उन बिलीव्स को पहचानना होगा। और वो कैसे होता है? कॉन्शियस होके। कॉन्शियस होना मतलब अभी तक हम एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम पे चल रहे हैं, ऑटो पायलट पे चल रहे हैं कि जो हो रहा है ज़िंदगी में हमें लगता है लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमें लगता है सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ बुरा कर रही है, इसलिए हम इसमें आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बट आज से हमें इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है ये हमारी अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से ही हो रहा है, राइट? तो आज से आप ये बैठ के सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली में आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ था। बचपन में नहीं हुआ तो क्या बड़े होके कुछ हुआ था? कोई ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसमें कि आपको पता चले कि आपके अंदर सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं कहाँ पे? या आप अगर अपने ब्लॉक्स नहीं पहचान पा रहे, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आई एम देयर फॉर यू। आप ये तो देख सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ चल कैसे रही है। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ऐसे लगता है हमेशा कुछ काम शुरू किया, कुछ देर तो ठीक रहता है, फिर उसके बाद लॉसेस, या आप एक जॉब ज्वाइन करते हो तो हमेशा शुरू में थोड़ा ठीक रहता है, फिर उसके बाद बॉस के साथ प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स हो रही हैं ऑफिस में, तो एक कोई पैटर्न चल रहा है क्या बार बार आपकी लाइफ में जहाँ पे आप आके रुक जाते हो? हाउ मैनी विल डू दिस टुडे? लेट मी नो। आई विल डू दिस। आज कौन कौन करेगा? राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई नो यू आर रियली इंटरेस्टेड इन चेंजिंग योर लाइफ। इवन आप अगर हाउस वाइफ भी हैं, मैं आपको एक वंडरफुल बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लेंगे, घर बैठे बैठे आप कुछ नहीं कमा रही, तो भी आपकी लाइफ में जो आप चाहती हैं फाइनेंशियली, बिना बाहर बिजनेस किए, जॉब किए, आप वो सब कुछ पा सकती हैं बाय रीप्रोग्रामिंग योर ओन माइंड। इज़न्ट दैट अमेजिंग? यस इट इज़। ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके कमाना ही है तो ही आपको ये चीज़ों की अबंडेंस मिलेगी। यूनिवर्स इज़ अबंडेंट, सिर्फ हमें उस अबंडेंस में ट्यून इन होना होता है, राइट? So this is the miracle of the mind and these are the beautiful laws of mind. अब हम आगे बढ़ते हैं कि how we can actually reprogram our mind. मैंने अभी बताया था ना कि आप चाहो तो आप अपना माइंड रीप्रोग्राम कर सकते हो। क्यों रीप्रोग्राम करना है ये तो आप सब समझ गए होंगे, बट फिर भी आई विल टेल यू। जो पुराने हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं, अगर हम उनको निकाल के बाहर फेंकें क्योंकि वो हमें फ़ायदा नहीं दे रहे, राइट? उनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हम उनको बाहर निकाल के फेंक दें और उसकी जगह न्यू बिलीफ्स डाल दें कि मुझे एक फुली प्रॉस्परस लाइफ ही चाहिए, या मुझे फॉरेन वेकेशंस पे जाना है, या मुझे अपने बच्चों को बेस्ट यूनिवर्सिटी में डालना है, वट एवर बी, मतलब आपकी जो लाइफ के एम्स हैं, जो आपको लगता है कि यू आर इंटाइटल्ड टू लिव, बट आज तक आपको समझ नहीं आ रही थी कि वो आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ यू कैन डू इट। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट में हो, आप जॉब्स में हो, प्रोफेशनल्स हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, किसी भी चीज़ में हो, यू कैन गेट एवरीथिंग यू वांट एंड आई एम हियर टू गारंटी यू दैट बिकॉज आई हैव लिव्ड दिस लाइफ एंड आई कैन ओनली टेल यू थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं सिर्फ 4 लाइनें पढ़ के किसी किताब में से किसी को कभी नहीं समझाती। सिर्फ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैं उसके बेसिस पे आपको कहना चाह रही हूँ इट इज़ पॉसिबल एंड आई एम हियर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू। इफ़ यू एवर नीड एनी ऑफ माई हेल्प,
आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप इज़ योर्स, यू हैव टू डू द वर्क. मैं ये नहीं कहूँगी इट्स अ केक वॉक की ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा. इट्स अ जर्नी एंड लाइफ इज़ अ जर्नी, इज़न्ट इट? अगर हम सोचते हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है लाइफ में, हमें वो चीज़ चाहिए, इट इज़ मोर अबाउट हु यू बिकम इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दैट गोल. आज अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी, वो किसी और पोस्ट में बात करेंगे जिससे कि मैं आपको इंस्पायर कर सकूं एक्चुअली, बट अगर मैं उसकी बात करूं, मैं उस जर्नी के बारे में कुछ नहीं चेंज करूंगी, क्योंकि उस जर्नी की वजह से ही मैंने अपनी लाइफ में तो जो चेंज लेके आई, बट अपने साथ बहुत सारे लोगों की मैंने हेल्प की लाइफ चेंज करने में. और यही तो एक्साइटिंग पार्ट है इस जर्नी का. वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड वन पर्सन एट अ टाइम. तो आज आप में से कोई भी अगर चेंज होके जाता है, आज आप एक लेडी होके अगर चेंज होके जाती है, आप अपने पूरी फैमिली को चेंज कर सकती हैं, उनकी डेस्टिनी को चेंज कर सकती हैं. लेडीज़ में इतनी पावर होती है, राइट? कहते ही है ना, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट वन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन, you educate the entire nation. How many of you agree with this? Women power. Type in the comments if you believe in women power. I totally do, and that's why I love this. Shruti, thanks for this beautiful group of yours. You know, it's lovely to have such groups where women feel secure and they can actually empower each other. So thank you, Shruti. Love from my side to you also. Okay, now let's come down to the main part. Okay, how can you reprogram your mind? Listen to it very carefully. They are very small things, but उनका असर इतना ज़्यादा है लाइफ में कि आप हैरान हो जाएंगे कि कब आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी. So number 1, if you want, note it down also. Number 1, change your words. Now what does that mean? जो वर्ड्स, जैसे मैंने आपको कहानी में सुनाए थे, जो वर्ड्स हम अंदर बोलते हैं अपने दिमाग में, सारा दिन हमारा मेंटल चैटर चल रहा होता है, राइट? तो वो वर्ड्स या जो हमारा स्पोकन वर्ड होता है, अगर हम उसको चेंज कर लेंगे तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी. वो सिर्फ एक कहानी तक मत सीमित रखिए, उसके अंदर का जो क्रक्स है उसको लेके आइए. अगर सपोज एक बहुत सुंदर गाड़ी जा रही है, कोई लैम्बोर्गिनी जा रही है सपोज सामने एक सड़क पे, ठीक है, और हम अपने घर में अभी फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है सपोज, सबसे पहले हम उसको देख के क्या कहेंगे? ये गाड़ी तो मैं कभी खरीद ही नहीं सकती, राइट? ये तो मेरा सपना ही रह जाएगा. पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, क्या पता कैसे कैसे कमाते हैं, राइट? आई नो यही मेंटल चैटर चलता है सबके दिमागों में कि ये चीज़ हमें खरीद ही नहीं सकते. बट लेट मी टेल यू, आपके जो ये वर्ड्स हैं उनके अंदर, हर वर्ड के अंदर है, और वही एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी तरफ खींच के लाएगी. और ऐसी सिचुएशंस जिसमें आप हमेशा यही कहते हुए पाए जाएंगे, मैं तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकती. तो आज आप ये फैसला कीजिए, आज से आप इसकी हैबिट बनाइए कि जब अब आप कहेंगे मनप्रीत बट हम कर नहीं सकते तो फिर फ़ायदा क्या, हम बोले क्या? तो मैं उसका भी सलूशन दे रही हूँ. आज से जब आप कोई भी ऐसी चीज़ देखेंगे जो आप चाहते हैं लाइफ में, बट ठीक है अभी आप नहीं अफोर्ड कर सकते, बट आपको कहने की ज़रूरत तो नहीं है अपने आप को. वॉट यू कैन से इज़, आई ब्लेस दिस पर्सन जो ये गाड़ी चला रहा है, भगवान करे उसकी ज़िंदगी में, या ये गाड़ी मैं ज़रूर लूँगी आने वाले कुछ टाइम में. आर दी सो इंस्पायरिंग वर्ड्स? चाहे आपको फेक लग रहे हो, चाहे आपको लगे कि ये मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगी, उसको छोड़िए. आज है ये सेशन आपकी लाइफ में चेंज लेके आने का. शुरू में हमेशा ये चीज़ें लगती हैं बहुत फेक, बट जब आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे ना, तो किसी दिन आप भी यहाँ पे एक लाइव वीडियो दे रहे होंगे इसी चीज़ के एक्सपीरियंस के बारे में, एंड उस दिन आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल्सो. सो आप अपने मन में कहेंगे ये मैं चीज़ खरीद सकती हूँ, ये मैं ज़रूर लूँगी टाइम आने पे, या आई ब्लेस दिस पर्सन जो ये चीज़ खरीद के चला रहा है. बिकॉज वॉट यू आर डूइंग ऑन टू अदर्स इज यू आर डूइंग ऑन टू योर ओन सेल्फ. देयर इज़ नो सेपरेटिज्म.
वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम सब एक ही हैं, एक से ही जुड़े हुए हैं। जो हम किसी के लिए सोचेंगे वही हमारे लिए होता है। तो हमें कभी किसी के लिए बुरा बोलना ही नहीं है, बुरा बोलना तो बिल्कुल नहीं है, अपने लिए उल्टा अच्छा बोलना है, ठीक है। नाउ कम्स द सेकेंड थिंग इज द पावर ऑफ, जो वर्ड्स हमने बोले ना उसी को हम आगे एक स्टेप लेके जाएंगे। अब ये क्या चीज़ है एफर्मेशन? जो आपकी चीज़, आपको जो चीज़ चाहिए लाइफ में, सपोज आप अभी आप बिल्कुल पॉवर्टी में हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, बट आपको चाहिए क्या, वो ही चीज़ आप अपनी लाइफ में रिपीट करना शुरू करेंगे, बिल्कुल उस सेठ की तरह जिसने उस चीज़ में बिलीफ बना लिया था कि मैं तो मर ही जाऊंगा वैसे। तो पर हमने क्या चीज़ बोलनी है जो बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, बट व्हाट, इसका भी एक तरीका होता है। एंड मैं ये आपको नहीं कहूँगी आप आइडियली कुछ भी बोलना शुरू कर दें कि आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ दिस एंड दैट, नो। किसी सेशन में बात करेंगे, आज बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो सेशन। तो आपके लिए इजी करने के लिए मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, देयर इज़ माई वेबसाइट manpreetkaur.com, आई लिंक इट हियर और यू कैन इवन मैसेज मी फॉर दैट। वहाँ पे जाके आपको मिलेगा अल्टीमेट सक्सेस मंत्रा विच आई हैव मेड। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग, जस्ट गो एंड लिसन टू दैट मंत्रा इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, and I'm telling you, this mantra has changed the lives of many, including myself. I still listen to it till this date. So this is a free gift from me. Go and listen to it, reprogram your mind for abundance, and then tell me after a few days how you are feeling and what the changes that are coming in your life, right? Now, thirdly, the third way to actually reprogram your mind, the best way to achieve prosperity in life is to visualize it. बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है ना विजुलाइज, बट नो, अगर मैं उसके बारे में आपको बहुत ब्रीफ में बताऊँ, नहीं तो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। विजुलाइज हम हमेशा ही कर रहे होते हैं, बट हम किसके बारे में विजुलाइज करते हैं? जिस चीज़ के बारे में हम बिलीव करते हैं, राइट? हमारा माइंड पिक्चर्स में ही सब कुछ जो है एनालाइज करता है। तो आज अगर मैं आपको बोलूं भी वेल्थ के बारे में या मनी के बारे में सोचिए, जो इंसान के पास प्रॉब्लम चल रही होगी वो सबसे पहले क्या सोचेगा? अपने डेट के बारे में, अपने बिल्स के बारे में जो अनपेड है अभी तक, या आपने जहाँ पे फीस देनी है, या जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंसेस से रिलेटेड, वो सबसे पहले उनको पिक्चराइज करेगा। बट जो इंसान आज कॉन्शियस होके यहाँ से जाएगा, जो लेडी यहाँ से कॉन्शियस होके जाएगी, वो आज से कुछ और ही विजुलाइज करेगी, और वो है प्रॉस्पेरिटी। अब इसके पीछे का छोटा सा मैं बताऊंगी फंडा क्या है। सब कॉन्शियस माइंड है, वो एक तरह से थोड़ा सा बेवकूफ़ भी होता है, राइट? हम उससे ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि हमारे पास कॉन्शियस माइंड है। हमारा सब कॉन्शियस ये नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ है, तभी तो हम उसको रीप्रोग्राम कर पाते हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ आज आप सोचो अपने माइंड में, एक नींबू लेके और काट के उसको अपने मुंह में आप पिचका के डाल रहे हो नींबू को, उसी वक्त मुंह में कुछ टिंगलिंग होनी शुरू हो जाती है, राइट? ये क्यों हुई? क्योंकि आपका सब कॉन्शियस ये नहीं जानता है कि आप ये सिर्फ सोच रहे हो कि ये रियलिटी में हो रहा है, उसे डिफरेंस नहीं पता। अगर आपको ये चीज़ पहली बार सुनने में मिली है या कुछ अलग लगा है तो टाइप अमेजिंग इन द कमेंट बॉक्स। इज़ इट रियली अमेजिंग और नॉट? लेट मी नो। सो हमारा जो सब कॉन्शियस है वो जानता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम चल रही है कि हमसे सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर आज मैं आपको कहती हूँ आप सिर्फ प्रॉस्परस चीज़ों के बारे में सोचो, आप सिर्फ सोचो कि आपकी लाइफ में क्या रिचेस हो सकती हैं, आपकी लाइफ में क्या एडवेंचर्स हो सकते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस चाहिए आपको, आपको बैंक बैलेंस कितना चाहिए, आज से उसको विजुलाइज करना शुरू करो। क्योंकि आपके सब कॉन्शियस को नहीं पता ये असली में है या नकली में है। बट अगर आप बार बार एक ही चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं तो वो समझेगा ये बिल्कुल सही है, ये रियल है, और वो चीज़ें लानी शुरू कर देगा आपकी लाइफ में। सो दिस इज द क्रक्स दैट वी थिंक वी आर मास्टरिंग आवर माइंड,
बट नो, आवर माइंड इज़ मास्टरिंग आवर डेस्टिनी. बट आज अगर हम फैसला कर लेते हैं कि हमें चेंज करनी है अपनी लाइफ को, सो वी हैव टू मास्टर आवर माइंड, वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड, एंड इट इज़ वेरी easy to do. It is simple to do in fact, but not easy in the sense हर चीज़ को, अगर आप कोई नया स्किल भी सीखते हैं, अगर आप आज जाके वायलिन सीखना चाहते हैं या आज आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, you know it is possible, it is not difficult, it is not rocket science, but it needs practice, isn't it true? So मैं एक बारी आज कर लिया, 2 बारी कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया, 1 महीना कर लिया और उसके बाद कहीं कुछ नहीं हो रहा. बिकॉज एक बात, एटलीस्ट आप अगर शुरू करें इस जर्नी को तो बीच में मत छोड़िए. बिकॉज इस जर्नी के पहले भी आप जो लाइफ जी रहे थे, आपको पता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी, उससे अगर कोई बेनिफिट नहीं हुआ. सो द मेन थिंग इज़ आज की जो आपका फैसला लिया हुआ है, इसको करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए. इसका फ़ायदा ज़रूर होगा एक दिन, ये मेरी गारंटी है. सो आई वॉन्ट, ख़ास करके इस वक्त कोविड-19 की वजह से जो हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी, जो जॉब्स, जो बिजनेसेस का हाल हुआ है, आई वॉन्ट एटलीस्ट वी विमेन, वी कैन स्टार्ट विजुअलाइजिंग, वी कैन स्टार्ट रीप्रोग्रामिंग आवर माइंड्स फॉर अबंडेंस. और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों में से अगर किसी ने सुना है 1930s में द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था पूरे वर्ल्ड में. How many of you heard of the depression? Please write down heard of depression. ये जब वर्ल्ड को स्ट्राइक हुआ था द ग्रेट डिप्रेशन, तब आप पता नहीं है जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बहुत लोगों ने जैसे अभी भी हो रहा है, लोगों ने सुसाइड्स की थी डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से, भूखमरी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, नो फ्यूचर, उनको कुछ फ्यूचर नहीं दिखता था इसके बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था, राइट. एंड तब भी उनमें से कुछ ऐसे लोग बच के सामने आए थे जिन्होंने वर्ल्ड को उसके बाद चेंज कर दिया था. पूरे वर्ल्ड को किया कि नहीं किया, अपनी लाइफ और अपनी सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर लिया था. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में सर्वे हुआ था. वो लोग अपने माइंड को ऐसे ही प्रोग्राम करके रखते थे फॉर पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. तो अगर उनके पास बिजनेस नहीं भी था, अगर उनके पास जॉब नहीं भी थी, कोई मीन्स नहीं थे, तब भी जब उन्होंने अपने माइंड को पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ था प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो उनकी लाइफ में एक्चुअल में प्रॉस्पेरिटी आती गई, चाहे किसी भी वे से. तो यही फ़र्क है उन लोगों में जो टाइम रहते अपने आप को प्रॉस्पर कर लेते हैं अपने माइंड से, और जो लोग अनजान रहते हैं, जिसे हम कहते हैं सोल स्लम्बर. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वेक अप टुडे फ्रॉम योर सोल स्लम्बर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. I think the time is really up now, and I hope you all enjoyed this session. Great. And if you have any questions, please let me know in the comment box below, and please let me know how you liked the session also. I would like to have some reviews on the session. How was it? Because I really enjoyed this beautiful audience. I'm really grateful to you. आपने इतना टाइम निकाला, एंड दूसरा आपने इतनी मोटिवेशन मुझे भी दी कि मैं नीचे कमेंट्स देखते तो जा रही हूँ. बिकॉज जब आपकी ऑडियंस रिसेप्टिव होती है तो स्पीकर अपने आप दे गिव द बेस्ट. सो आई जस्ट लव टुडे सेशन. आई होप यू लव्ड इट ऑल्सो. इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स लेट मी नो so that we can change, we can end the session. बस जाते जाते मैं सिर्फ एक बात, एक गोल्डन नगट्स आपको देना चाहूँगी कि जो हमारी लाइफ है, ये लॉज कभी रॉन्ग नहीं होते, ठीक है. आप जानते हैं लॉज के बारे में, ये नहीं जानते हैं, लॉज कभी फेल नहीं होंगे. बट मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको, आपकी जो लाइफ है इस वक्त, वो बिल्कुल उस चीज़ का आउटपुट या एक समझ लो प्रिंट आउट है जो आपके माइंड में है. दोबारा बोलूँगी, जो आपकी लाइफ है अभी, जो सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, किसी भी वे में, हेल्थ को लेके, इट मीन्स कि ये सब कुछ प्रिंट आउट है जो आपके मन में चल रहा है.
और आप सब समझ गए होंगे, अब मैं कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रही, मैं सब कॉन्शियस प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ जो हमारे माइंड में है। तो अगर कुछ भी ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको पसंद नहीं है, तो इट मीन्स आपका माइंड आपके साथ खेल खेल रहा है, और अब आपको पता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। एंड सेकेंडली, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, and I just want to say lovely being here. Thank you so much all of you for being the amazing audience you have been. God bless you all abundantly. See you all next time. Love, Manpreet Kaur.